السلام علیکم ناظرین، میڈیا 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اذان رانا۔ ناظرین، ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جو گزشتہ دنوں واقعہ پیش آیا، اس پر پوری پاکستانی قوم مذمت کرتی ہے جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور ملزمان جو ہیں وہ اب تک گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن پوری پاکستانی قوم اس وقت تک اطمینان سے نہیں بیٹھے گی جب تک ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی اور دینی حلقوں میں یکساں مشہور اور گہری مسکراتے گہری بات کر جانے والے ناصر مدنی صاحب۔ ناصر مدنی صاحب، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کو پوری پاکستانی قوم کی طرف سے ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ آپ نے تو ساری زندگی اور جب سے آپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ہیں تو کسی میں ایسا نہیں دیکھا کسی کو آپ نے ٹونٹ کیا ہو یا کسی کو ہرٹ کیا ہو۔ آپ نے تو ہر اسپیچ میں محبتیں بانٹیں، عزتیں بانٹیں، تو پھر یہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا سارا کچھ؟ دیکھیں، میں نے تو آج تک سبھی لوگوں کو ملانے کی بات کی، سبھی مسالک کو ملانے کی بات کی ہے کہ ہر ایک کی مسجد میں آ جا کر ایک دوسرے کی بات سنو، اللہ رسول کی بات مانو، اور جاتا بھی مجھے جو بلاتا ہے میں سبھی میں جاتا ہوں۔ اس لیے مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں آج تک کسی نے کہی کہ آپ نے یہ بات کی، یہ کی۔ بس میں اپنے ہلکے پھلکے انداز میں اپنے لہجے میں بات کر جاتا ہوں۔ وہ کئی لوگ جو پنجابی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے پتہ نہیں انہوں نے ان کو کوئی مذاق کیا ہے، یا حالانکہ ہمارا پنجابی لہجہ ہی اس طرح کا ہوتا ہے۔ اور تینوں کیا اسی کام کریں، یہ ساری پنجابی زبان ہے نا، تو وہ نہیں لوگ کی بدتمیزی سمجھتے، حالانکہ وہ بدتمیزی کا لفظ تو نہیں۔ جس طرح اردو چ تم اور آپ، حالانکہ تم بولو تو وہ کہتے ہیں یہ بدتمیزی ہے، کہتے ہیں آپ کہیں، یہ حالانکہ لفظ سے وہی ہے۔ کافی سپیچز میں میں نے بھی دیکھا ہے کہ آپ نے تم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، آپ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ آپ کا بھی میں نے کیا، تم کا بھی کیا۔ مدنی صاحب، اتنا بڑا واقعہ آپ کے ساتھ پیش کیسے آیا ہے؟ بس جی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، نہیں تو میرے اتنے تعلق اداروں سے تو میں سکوٹی لے لیتا زیادہ ان سے، بس میں سوچ نہیں سکتا تھا انہوں نے دھوکے سے ورگلا کے اذان سن لی۔ کرو پرچے دے حساب نال، قانون دے حساب نال انہاں کو بیان لیا کرو وچ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ہاں جی بڑی مدنی صاحب، اتنا بڑا واقعہ آپ کے ساتھ پیش کیسے آیا؟ بس جی، یہ واقعہ میں جب سے مشہور ہوا ہوں، فیمس ہوا ہوں، پہلی دفعہ یہ کسی کے اتنے بڑے اعتماد میں انہوں نے مجھے بہلا پھسلا کے لاہور سے ساتھ لے گئے، اور بلو نامی آدمی تھا جو ساتھ لے کر گیا، اور وہاں اجوا ہوٹل تک تو میرے ساتھ بیٹھے رہے، وہاں منع کرتے رہے کہ ویڈیو نہ بنائیں، پکچریں نہ بنائیں۔ تو وہ جو میرا دوست تھا ساتھ، اس نے کھانا کھایا میرے ساتھ بیٹھ کے، وہ پھر اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد جو اپنے وہ ڈیرے پہ لے گئے، وہاں سارا یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ نے پریس کانفرنس میں اپنے وہ نشانات بھی دکھائے، تو وہ کس چیز کے نشان اتنی بری طرح سے مارا؟ کیا کوئی رولا آپ کو پھیرا تھا؟ وہ کچھ بندوقوں کے آگے جو نالیاں ہوتی ہیں ان کے نشان ہیں، بٹ مارے آپ کو؟ بٹ، اور کچھ وہ ان کے پاس چھڑی تھی، اور کچھ پائپ تھے، اور کچھ کوڑے تھے، اس طرح کی تھی۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے، اس میں آپ کی سپیچ کا کوئی تعلق، آپ کی سپیچ کی وجہ سے تو نہیں کوئی یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہوا؟ نہیں، مجھے تو ایسا کوئی نہیں لگتا میری سپیچ میں کوئی ایسا لفظ ہو کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، مجھے تو کوئی ایسا نہیں لگتا۔ کوئی ایسی سپیچ نہیں آپ نے جو لاسٹ ٹائم کوئی ایسی کی ہو؟ سننے میں یہ آ رہا تھا کہ جو آپ نے کرونا کے بارے میں وہ کوئی پھونک والا، وہ تو بات اب بھی میں نے ان دی ریکارڈ کی ہے کہ سارے پھونکوں والوں کو میرا پیغام ہے کہ اب نہیں پھونکے مارنی، تو مارنی کب ہے؟ اب تو ساری دنیا ٹاٹا کرنے لگی، ہاتھ نہیں کو ملا رہا اس ایک دوسرے سے۔ امت مسلمہ میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے اس ٹائم بدترین جو وقت آیا، اس کو میں بدترین وقت کہوں گا آزمائش کا، کہ جہاں سلام لینے والے ٹاٹا کر رہے ہیں کہ بھئی ہاتھ نہیں ملانا، دور سے السلام علیکم۔ تو یہ کبھی وقت آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، صحافی برادری کی آنکھ نے نہیں دیکھا، علماء اکرام نے نہیں دیکھا، اور جتنے یہ لوگ کھڑے سامعین انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو اس سے مشکل وقت پاکستان میں امت مسلمہ پہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ پھوکوں والے یہ اپنی پھوکوں میں اثر رکھتے ہیں، اللہ رکھا ہو، ہم تو کہتے ہیں
کہ दम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, दम का असर है। तो ये करे सारे कोरोना वालों पे, सारे ये जो लोग अस्पताल इतने इतने महंगे बना रहे हैं और लोगों को लग थलग एक जिंदा इंसान को जिंदा कब्र में बंद कर रहे हैं कि उसको केले में रखना है, जो भी कोरोना वाला है उसको मिलाप नहीं करने देना किससे। तो इससे बड़ी आप बता दें आजमाइश की घड़ी कोई हो सकती है कौम पे, उम्मत पे? उसमें फिर एहतियात भी आ जाती है ना कि आप वो जो सारी उन्होंने बताए हैं बचने के लिए। नहीं, वो एहतियात लग नहीं, आप दम की बात कर रहे हैं, फूकों की बात कर रहे हैं। मैंने सभी फूकों वालों को भी कहा है कि जो भी कोई फूक मारता है, अब वो उसको त्यारा देते हैं तो वो पूरी दुनिया में जाए और जाकर फूक मारे तो पता लगे कि आप वहाँ भी क्लिप बन के अपलोड हो के इसको शिफा होगी। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मैं हुकूमत से अपील कर रहा हूँ कि मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए, तो उस पर अभी तक कुछ अमल हुआ? देख लें, अभी तक लम्हा फिक्री है कि उन्होंने कोई इधर दरवाजे पे भी नहीं सिक्योरिटी भेजी। नहीं, इस वाक़े के बाद आपको कोई थ्रेड आया या आपको लगता है कि कुछ थ्रेड है आपको? इस वाक़े के पहले जब उन्होंने मुझे थ्रेड दिया है कि आपने अगर मीडिया से बात की तो हम आपको शूट करेंगे, तो इससे बड़ा थ्रेड क्या हो सकता? अच्छा माजिद साहब, आप सारा इनका कानून का वो देख रहे हैं, मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए, मेरे ख्याल से तकरीबन 4 से 5 मुल्जिमान हैं जो अब तक गिरफ्तार हुए हैं, तो उनके अब क्या आगे कार्रवाई लाई जाएगी? 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और आज उनको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया है। अभी उनकी शनाख्त होना बाकी है। शनाख्त परेड बाकायदा जो कानूनी निज़ाम है उसके तहत अभी नहीं हुई। तो मेन जो इसके मरकज़ी मुलज़म हैं वो अभी उनकी गिरफ़्तारी रहती है और इस सारी कार्रवाई के पीछे जो कारफरमा और जिनका दिमाग था मास्टरमाइंड की गिरफ़्तारी भी अभी रहती है। तो वो एक कानून का एक दायरा कार होता है, एक निज़ाम है, तो उसमें जब वो लोग सारे गिरफ्त में आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मज़ीद भी वाज़ेह हो जाएंगी। अच्छा, ये जो वाक़या हुआ मदनी साहब के साथ, इस पे कौन सा दिफा लगती है और इसकी क्या क्या सज़ाएँ हैं? इसमें बत्ताखोरी शामिल है, इसमें अगवा शामिल है, फिर उस दौरान लूट मार शामिल है, फिर इनके जो अकाउंट्स हैं जो साइबर लॉ के तहत हैं उनकी शमूलियत है, फिर किसी की बरहना वीडियो बनाना ज़बरदस्ती और उसको ज़दकोब करना, वो सारी चीज़ें शामिल हैं। तो अभी तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो अभी बहुत सारे मामलात और बहुत सारी दफ़ात का इसमें इजाफा भी होगा। मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है जिस्म पे तशद्दुद के जो निशानात थे, तो उस हवाले से भी अभी सारी चीज़ें ग्रेजुअली जो हैं वो अभी होंगी। जी। अच्छा मदनी साहब, आप लोगों के लिए तो अब एक सेलिब्रिटी बन गए हैं और लोगों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। मुल्जिमान गिरफ़्तार हो गए हैं, बीइंग अ मौलवी आप मुल्जिमान को वो सज़ाएं दिलवाएंगे जो माजिद साहब ने कहा कि अपने अस्वे हसना पे चलते हुए उनको माफ़ कर देंगे? देखें, जब वो मेरे से माफ़ी का मुतालबा रखेंगे मीडिया के सामने, जो उनके पीछे असल मोरे हैं, ये तो इस्तेमाल हुए हैं, असल जिनके कंधों पे बैठ के इन्होंने काम किया है, जब वो सामने आकर कहेंगे कि लामा साहब हमें माफ़ कर दें, तो मैं इंशाअल्लाह उस रसूल पे अमल करूँगा। यानी आप उनको माफ़ कर देंगे? इसमें उसवा रसूल जो है ना जी, वो पहले डिटर्मिनेशन करता है मुल्ज़म कौन है, मुल्ज़िम कौन है, उसकी सज़ा का तयन होता है। हाँ जी। पहले रियासत पाकिस्तान उनकी सज़ा का तयन करेगी, फिर हमारे पास इख्तियार होगा कि हम उसको माफ़ करें या सज़ा दिलवाएं। जी बिल्कुल। तो ये कबल अज़ गिरफ्तारी, ये कबल अज़ उनकी अनाउंसमेंट जो होती है वो इस तरह की उम्मीद हमसे ना रखें। ठीक। पहले वो डिटर्मिन होंगे, फिर उनकी सज़ा का तयन किया जाएगा जो पाकिस्तानी कानून में मौजूद है। ये मामला उसके बाद का सवाल भी जब मैंने तो यही बात की, जब वो सजा याफ्ता हो जाएंगे, अपने जुर्म का इकबाल जुर्म कर लेंगे और हमारी अदलिया, हमारे पाकिस्तान के इदारे उसको कटहरे में खड़े करके सजा सुना देंगे, और फिर उसके बाद जब वो रहम की अपील करेंगे अदलिया में भी, और जब सारे दरवाजे उनके लिए बंद हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं, यानी आप फ्यूचर का सोच रहे हैं कि उनको कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाए कि कल को किसी और को उठ के वो उनके साथ ऐसा सलूक ना करे? बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रहे थे इस मेरे सवाल पे जो मैंने आपसे सवाल किया था, क्या कहना? बस नहीं मुतल का मैं ऐड करवा लूँगा उसके बाद। मैं ये कह रहा था, हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती मदनी साहब के घर तशरीफ़ लाए हुए हैं मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब। ये इनसे बात करते हैं कि मेरे सवाल पे क्या कह रहे थे जो मैंने इनसे अभी सवाल किया। जी आपने क्या सवाल किया था? अब मैंने कहा था कि अगर
फ्रेम नहीं बना बीइंग एक मुस्लिम ज़ाहिर है एक जो मुसलमान, वैसे तो सब मुसलमान, हमारा फ़र्ज़ है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें और जो जो उन्होंने किया उस पर अमल करते जाएं। तो वो तो इतने जिसे कहना चाहिए नरम मिजाज के, नरम दिल के थे कि एक जगह अगर मस्जिद के पास कुत्ता पेशाब कर रहा है तो बंदा पेशाब कर रहा है, सॉरी टू से, मस्जिद के सहन में, हाँ जी, मस्जिद के सहन में, तो वो उसको माफ़ कर देते हैं, उसको रोक देते हैं कि इसको मत मारो। तो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए हैं, तो मेरा सवाल ये था कि क्या आप उनके पैरवी करते हुए उनको माफ़ कर देंगे? मसला ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जहाँ माफ़ किया है ना जी, वहाँ ये भी कहा है, जिन्होंने पैगम्बर अलैहिस्सलाम की तौहीन की है ना, उनके बारे में जब मक्का फतह हुआ था तो आपने फरमाया था कि फ़लाँ फ़लाँ आदमी जो है वो काबतुल्लाह के गुलाफ से चिमटा हुआ भी नजर आ जाए तो उसको वहीं कत्ल कर देना चाहिए। ठीक है, और जहाँ जो नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन करता है वो वैसी वाजिबुल कत्ल है। ठीक है, वो एक शिक है। जिन्होंने आपको पत्थर मारे, आपको ताइफ के मैदान में पत्थर मार के ज़ख्मी कर दिया, उनके बारे में भी जिब्रील ने आसमान से आके कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे हुक्म दे इन बस्ती वालों को उठाकर मैं दोनों पहाड़ों के दरमियान में रखकर इस तरह पीस दो जिस तरह सुरमा पीसा होता है, उस तरह। लेकिन आपने फरमाया नहीं, एक वक्त आएगा इन ताइफ वालों में से अल्लाह की इबादत करने वाले पैदा होंगे, और आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। वो तो काफिर थे जिन्होंने आप पर जुल्म किया। ये लोग नाम के मुसलमान हैं, ये जिन्होंने मौलाना नासिर मदनी साहब के साथ ज्यादती की है, और इतना ही अल्लाह पाक ने इनको इज्जत दी है मुआशरे में, कुरान और हदीस की वजह से, इल्म की वजह से, दीन की तबलीग करने की वजह से, तो आप करेंगे, इनको इज्जत दी है। तो इनकी बेइज्जती करना या इनके कपड़े उतार के इन पे जुल्म करना, इनके तशद्दुद करना, ये इस्लाम में कहीं नहीं मिलता। ना इस्लाम किसी बात की नबी हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए हैं तो आपने क्या फरमाया था, क्या काबतुल्लाह आपकी अजमत बड़ी है लेकिन मोमन की आपसे भी ज्यादा इज्जत और वक़ार है। मोमन की इज्जत जो है वो काबतुल्लाह से भी ज्यादा है। आपने फरमाया था ए हरमे बैतुल्लाह आपकी इज्जत और वक़ार बहुत ज्यादा है, लेकिन मोमन की जो इज्जत अल्लाह ने मोमन को इज्जत दी है, शान दी है, वो एक बहुत बड़ी है, वो हरम से भी ज्यादा है। तो इस वजह से मोमन को मारना, मोमन को ज़दोकोब करना और बगैर किसी गुनाह के, ये इस्लाम और शरीयत नबी की सीरत इस बात की इजाज़त नहीं देती। लेकिन कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास अल हुर्र बिल हुर्र। कुरान ने कहा है जितना कोई जुल्म करता है उतना उस पर जुल्म होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई माफ कर दे, माफी का रास्ता तो फिर दूसरा है ना। कुरान ने कहा वसारे इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज़। और कुरान ये भी कहता है अल्लज़ीना युनफिकूना फिस सर्राई वज़ ज़र्राई वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। ये जो मुआफ़ी वाला रास्ता है ना, ये तो बड़ा अल्लाह है, लेकिन इतनी जल्दी माफ नहीं। इतना जुल्म कर दें तो हम आज ही उनको कह दें वो आ जाए। जितना जुल्म उन्होंने किया उतना उनके साथ ज्यादती होगी। हाँ। और इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। ये भाई अब्दुल माजिद साहब कानून हमारे साथ है, पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी जमात हमारे साथ है। और मैं इस बात को बिल्कुल यहाँ बयान करना चाहता हूँ कि मरकजी जमीयत अहले हदीस पूरी की पूरी और पूरी पाकिस्तान की पूरी जमात और हमारे अकाबरीन हजरत प्रोफेसर साहिब मीर साहब अमीर मरकजिया पाकिस्तान, हाफिज अब्दुल करीम साहब नाज़िम आला अमीर मरकजिया पाकिस्तान, इंशाअल्लाह ताला पूरी बॉडी और मेरे समेत जितने अवामी हमारे खुताबा हैं वो सब के सब हर इंसान इंशाअल्लाह मदनी साहब के साथ खड़ा है। बल्कि मदनी साहब ने तो कभी फिरके की किसी किस्म की बात नहीं की, तो मुझे नहीं लगता कि किसी फिरका ऐसा है जो मदनी साहब के अंगेज चले। तमाम फिरके जितने हैं वो मदनी साहब के साथ चलेंगे। मदनी साहब, ये वाकया होने के बाद क्या समझते हैं कि आप अभी भी ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे अपनी स्पीचेस जो हैं और लोगों को ऐसे ही दर्द देते रहेंगे? जी देखें, ये तो मेरा मिशन मेरी कब्र में मेरे साथ जाएगा। मेरा मिशन लोगों को मिलाना है। मेरा मिशन लोगों को कुरान, सुन्नत, अल्लाह और उसके रसूल की बात उनके लहजे के मुताबिक जो समझते हैं, यानी वो अजनबी न समझे मुझे, तो मैं इंशाल्लाह अपनी आखिरी सांस तक ये पैगाम पहुँचाते रहना है। और जैसे हर गांव में जाता हूँ, हर सिटी में जाता हूँ और हर एक के पास जाता हूँ, मैं इंशाल्लाह हक का पैगाम जहाँ मुझे ज़रूरत होगी, लोग मुझे डिमांड करेंगे, मैं पहुँचूँ।
पंजाब पुलिस ने इतनी जल्दी इस कार्रवाई को पूरा किया और बंदे पकड़ लिए, इस पे क्या कहेंगे आप? ये इसका नतीजा एक ये भी है कि जो मेरे चाहने वाले हैं उन्होंने फेसबुक पे इतना सख्त शदीद रद्द अमल दिया कि हुकूमती इदारों को पता चल गया कि किसके साथ ज़्यादती हुई है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान का रवाज है, जब तक किसी आदमी के पीछे कोई रद्द अमल ना आए तो हम उसकी बात को वज़न नहीं देते। तो जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पूरी दुनिया से जब रद्द अमल आया और फेसबुक पे, ट्विटर पे और सियासी जमातों ने और मजहबी जमातों ने और बल्कि तमाम जो अपने आप को उलमा की बैठक से दूर रखते हैं लोग, जिनको लोग लिबरल बोलते हैं, वो लिबरलों ने भी आवाज़ बुलंद की। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने पाकिस्तान के शोबा जहाज से फॉर्म से मैं इंशाअल्लाह उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी वजह से ये सारा एक्शन हुआ है। अच्छा मदनी साहब, उम्र में तो आप मुझसे काफ़ी बड़े हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बारी मुझे मेरा चन्न, मेरा सोना, मेरा मखना, जो आपका एक अंदाज़ है, रिवायती अंदाज़ है, उससे ज़रा एंडिंग करें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी 92 मेरा चन्न, हाँ। तू केड़े मौके ते मैनू केड़ा ते काम कह दिता है। मैं इस टाइम परेशान सा। अल्लाह पाक अगर- आपकी परेशानी दूर करे। नाज़रीन, मेरा चन्न, मेरा मखना, हाँ जी। मेरा सोना, जानू आया मस्जिद, हाँ, पूरी कौम मदनी साहब के साथ है और पूरा पाकिस्तानी मीडिया इस बात की यकीन दहानी दिलवाता है कि मदनी साहब को जहाँ जहाँ जिस तरह की भी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ हैं। हमें उम्मीद है कि मदनी साहब जल्द सेहतयाब होकर हमें अपने दर्स दिया करेंगे और वैसे ही अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे खूबसूरत से चुटकुलों से नवाजेंगे। अपने मेज़बान अजान राना और मीडिया 92 न्यूज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।